How do you really get confidence? मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक इलायची लेनी है और एक राई का दाना लेना है, ठीक है। उसको किशमिश में दबा के लेफ्ट साइड कान के ऊपर से 3 बार घुमा करके और एक बार मुंह में रख लेना है। डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क। You are here because of a purpose. Your birth, your life, this is not an accident. You are a piece of a puzzle that without which a very big picture is incomplete. Can you become rich without any एक mindset है इंडिया में कि यार जब तक अपना बिजनेस नहीं है तब तक आप एक्चुअली रिच नहीं बन सकते किसी के लिए काम करने में या कुछ में। हमने देखा है प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में, हमने देखा है रिसर्च ड्रिवन कंपनीज में बहुत अच्छे एएमसी फंड मैनेजर्स की इतनी जबरदस्त सैलरीज हैं, पे ऑफ्स हैं। एक ही चीज फेयरनेस है 24 घंटे सबको दिए। इफ आई रेंट माई टाइम आई कैन नेवर बिकम रिच। मेरी थॉट बहुत डिफरेंट है इसके ऊपर। What should a man look for in a woman? I feel that women are much more stronger than men are. Boy falls in love with a girl because the way she laughs, the way she sits, the way she gets into the car, the way she does this to the hair. And when the girl confirms that yes, I also love you, these are the 4 things he stops her from. How do you take control of your mind? You just damn have to realize कि भैया ये आपका माइंड है, आप इसको कंट्रोल करो। जब आपका माइंड वंडर ऑफ करता है आप उसको पकड़ के लेके आइए एंड देन यू स्टिक टू इट। जब भी एक स्नैपर को तैयार किया जाता है मैम, तो ये लगाना 40 किलोमीटर की रनिंग होती है मैम, 40 किलोमीटर रनिंग, और बॉडी में कम से कम 25 से 30 केजी का वेट होगा मैम। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाने के बाद आपको अगले दिन रेस्ट दिया, आपको 1 घंटे के रेस्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज, आप छोड़ छाड़ के चले जाओगे मैम। Give me some techniques that we can use to expand our mind. There's so many, Divya. You can. And कितना ज़रूरी है sleep? आज के दिन एक hustle culture हो गया है। Rakesh Junjunwala has said in a viral podcast video saying, "My worst investment has been my health." This concept of Ho'oponopono, and I've heard a lot of your, talks on this. So I wanted to start with that. How do you live life on your own terms? अरे बाप रे, like इस पे तो किताब लिखनी पड़ेगी। Yeah, but that's what I'm saying. You live it on your own terms. You make your own rules. You be self-centered, but you still live it with this sense of purpose. Whoa, she has some seriously beautiful questions, thought-provoking questions. If I just simplify it for Gen Z, you are here because of a purpose. Your birth, your life, this is not an accident. You are a piece of a puzzle that without which a very big picture is incomplete. You are very important. Very, very important. You are not here to be the clone of someone else, because that piece is already taken in the puzzle. तुम एक extra piece बन के मत जियो. You fit where you belong. Get to know yourself. Once to get to know yourself, as you and I were discussing, make mistakes. Make different mistakes. Learn from them. Most important. Don't waste those also. And when life gives you an opportunity, you go after it guns blazing. Not because mama, papa, society, community told you to do that, but because your insides tell you this is your moment, you take it. By doing this, I'm making my book in a nutshell for you. You will come to a place where you will start to know your strengths and your weaknesses. When you befriend your weaknesses, and you develop your strengths, you live life on your own terms. Wow. That was hard. Because you see, in today's Gen Z, everything is about instant gratification. Life has become like this. But if you really want to achieve your greatest potential, you have to slow it down. And you have to know your biological clock is your biological clock. Your emotional clock is your emotional clock. Don't waste your time and energy on something that doesn't belong to you. Very important but very difficult. हाँ जी। And it is confidence. लोगों को चाहिए कॉन्फिडेंस कुछ भी करने का। Yes. लेकिन मे बी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें हमेशा ये बताते हैं कि आपने इतने सब्जेक्ट्स में आप पास नहीं हुए हो। हाँ जी। ये चीजें हैं जो आप कर नहीं पाए हो। So you want to do something, you want to crack that interview, you want to get that job. लेकिन आपको पता है कि मुझे इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। That is so true. It has not been developed
शायद एजुकेशन से, शायद आपकी लाइफ से. हाउ डू यू रियली गेट कॉन्फिडेंस व्हेन देयर इज नन? व्हाट इज दैट फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप? व्हाट डू? आई वांट टू अचीव इन लाइफ, आई वांट टू डू दिस, बट हाउ? Where do you draw that confidence? ये क्वेश्चन मुझसे कल किसी ने पूछा था. There was an online meeting. I was engaged with some students in one of the university. So they asked me the same thing कि सर कॉन्फिडेंस के लिए क्या क्या करना पड़ता है. My first response was, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक इलायची लेनी है और एक राई का दाना लेना है. ठीक है, उसको किशमिश में दबा के लेफ्ट साइड कान के ऊपर से 3 बार घुमा करके और एक बार मुंह में रख लेना है. Definitely is going to work. So they all started laughing कि this is seriously, मैं no, it won't work. 3 चीजें बताता हूँ मैं फर्स्ट डे इन द क्लास स्टूडेंट्स को, जो मेरे बोर्ड पे लिखी रहती है हमेशा. 1 इज बी सिंपल, आप जैसे हैं अच्छे हैं. सेकंड थिंग इज रिटन बी ओरिजिनल. ठीक है, डोंट ट्राई टू कॉपी समवन एल्स, बी योर ओन वर्जन. एंड थर्ड थिंग इज द बी कॉन्फिडेंट. ये मैंने आने के बाद में ऐड किया बेस्ड ऑन माई ऑब्जर्वेशन अबाउट स्टूडेंट्स. टुडेज जनरेशन नॉलेज बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है. वेदर दे गोइंग फॉर द प्लेसमेंट इंटरव्यू और या पब्लिक में आप खड़े होकर बात करने के लिए बता दीजिए, और टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड इन सम फोरम. कॉन्फिडेंस एक्चुअली इज वेरी लो, एंड बहुत हद तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है. फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द रीजन. बिकॉज ना वी आर टू जजमेंटल एज अ सोसाइटी इन वट एवर फॉर्म, है ना. स्टूडेंट्स हैं तो उनको ना नंबर्स पे ग्रेड करेंगे हम लोग. यू गो टू जापान, यू नो, yesterday I was reading an article, their mother shifted from US to Japan. Why? Because in the fundamental years she wants कि मेरा बच्चा यहाँ पे रह के पढ़ाई करे, कि इनिशियल फाउंडेशन ईयर्स में ना पहले 5-8 साल मेरे बच्चे को कोई टेंशन नहीं है पढ़ाई के लिए, टिल क्लास 5th 6th, यू नो, ही इज नॉट बीइंग ग्रेडेड. द आइडिया इज टू टीच एंड वन शुड लर्न. बट हम लोग तो बहुत छोटे हो जाते हैं, तब से ना इंग्लिश नहीं आती है, बेटा आपको ये भी करना है, कंप्यूटर भी सीखना है, हाँ आपको A+ मिला, B+ मिला, एंड पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विद दिस. एंड हम यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. मैं पहले दिन बताता हूँ अपने स्टूडेंट को जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है, 12th कर लिया है, कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. मैं आपको कभी भी जज नहीं करूँगा किसी भी हालत में, बट आई विल ओनली ट्रेन यू. माई आइडिया इज टू ट्रेन यू, नॉट टू जज यू. जज करने के लिए दुनिया बैठी है ना, पेरेंट्स से लेके सोसाइटी, रिश्तेदार सब करेंगे जज. मैं जज नहीं करूँगा, आप पूरी तरह एक्सेप्टेड हो मेरे को जैसे भी हैं आप. कॉन्फिडेंस है वो मैं पक्का बढ़ाऊंगा. कैन यू बिकम रिच विदाउट एनी? एक माइंडसेट है इंडिया में कि यार जब तक अपना बिजनेस नहीं है तब तक आप एक्चुअली रिच नहीं बन सकते किसी के लिए काम करने में या कुछ में. यू आर सेइंग नो, इट इज पॉसिबल टू बी. एब्सोल्युटली. सी, आई डोंट डिसएग्री टोटली विद व्हाट गजेंद्र सर सेड, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ. आई थिंक दिस नोशन वाज करेक्ट टिल 90s कि आपको अपना खुद का ही बिजनेस करना पड़ेगा. बट उसके बाद जिस तरीके से इकोनॉमी ने फ्लरिश किया, इकोनॉमी के जॉब्स आए हैं, इंटरनेशनल कैपिटल इंडिया में आया है, आई कैन नेम यू सो मेनी इंडिविजुअल्स who are making salaries which even business people can't think of कि उतना वो प्रॉफिट भी जिंदगी में बना पाएंगे. मतलब people are making 3 crore salaries, 5 crore salaries, 10 crore salaries. There is a concept of entrepreneurship and there is a concept of entrepreneurship. तो entrepreneur वो होता है जो कैपिटल का रिस्क नहीं ले सकता, पर वो मेहनती बहुत है and he can act like an owner. So you have inside organizations also, you will have people who will act as an owner. बस उनके पास प्रॉब्लम है, उनके पास कैपिटल का रिस्क लेने को या तो दम नहीं है या कैपिटल नहीं है. तो आई थिंक आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें पीपल विद जॉब्स आल्सो कैन डू वेरी 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 वेल. एंड हमने देखा है प्राइवेट इक्विटी कंपनीज में, हमने देखा है रिसर्च ड्रिवन कंपनीज में, बहुत अच्छे अच्छे AMC फंड मैनेजर्स की इतनी जबरदस्त सैलरीज हैं, पे ऑफ्स हैं, PMS मैनेजर्स की इतनी जबरदस्त सैलरीज और पे ऑफ्स है कि एक बिजनेसमैन जो सोचता है कि यार मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लूँ, पहले मैं कैपिटल का रिस्क लूँ, फिर मैं बैंक का लोन लूँ और उसके बाद मैं बिजनेस बड़ा करूँ. मेरे थॉट बहुत डिफरेंट है इसके ऊपर. तो मैंने ऑल्दो कभी जॉब नहीं करी है, बट मैं फिर भी ये मानता हूँ कि जॉब करके भी जो है वो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन मेक इट बिग, यू कैन मेक इट वेरी बिग. एक तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में लोग बात नहीं करते कि आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे उसका इतना इम्पैक्ट पड़ता है. एक जॉब वाला शायद 9 to 5, 9 to 9 काम कर रहा होगा, बट आई थिंक आप दोनों ही एग्री करेंगे, आप भी एग्री करेंगे, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन 24/7 काम करता है. उसके सोते समय भी दिमाग में बिजनेस चल रहा होता है. एटलीस्ट मेरे तो चल रहा होता था जब मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व था. मैं तो 24/7 काम कर रहा होता था. सुबह उठते ही किसी बच्चे का डाउट आया उसको रिप्लाई करना है, किसी क्लाइंट की कोई क्वेरी आई उसको रिप्लाई करना है, कुछ ना कुछ वो चलता रहता था. तो मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट आया है. नो डाउट मैंने ठीक वेल्थ क्रिएट करी, ठीक पैसा कमाया, बट उसका इम्पैक्ट मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे आया. दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये कि पता है जॉब करने वालों के पास भी ना एक, अगर हम सभी एंटरप्रेन्योर बन जाएं तो मतलब जॉब कौन करेगा?
आप ये सोचिए ना, फिर आपके पास ही वो व्यक्ति कहाँ से आएगा जो आपके अभी तक जो मिसलिनियस वर्क है या जो आपके बढ़िया लेवल के भी काम है वो कर रहा है, आप कहाँ से लेके आएंगे? यानी कि आप उसका ही माइंडसेट बदल दोगे, भाई एंटरप्रेन्योर ही बन जाओ, फिर सभी एंटरप्रेन्योर हैं, 140 करोड़ एंटरप्रेन्योर आ गए हमारे पास, तो कैसे काम चलेगा? बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बोला. सी माई ओनली कंटेंशन हियर वाज कि यू कैन, नवल भी बोलते हैं, यू कैन नेवर गेट रिच बाय रेंटिंग योर टाइम. राइट? देखो भगवान है ना, ने बहुत अनफेयर गेम खेला है. किसी को रिच बनाया, किसी को पुअर बनाया, किसी को ब्यूटी दी है, किसी को नहीं दी है, किसी को इंडिया में पैदा किया, किसी को ऑस्ट्रेलिया, यूएस, बांग्लादेश, हर जगह अनफेयर है. राइट? कास्ट का अनफेयर है. एक ही चीज़ फेयरनेस है, 24 घंटे सबको दिए. तो इफ़ आई रेंट माई टाइम आई कैन नेवर बिकम रिच. राइट? मैं ठीक ठाक पैसे कमा सकता हूँ, बट सुपर रिच जो हम बात कर रहे हैं वो नहीं बन सकते हैं. दैट इज़ वेयर यू हैव टू ओन इक्विटी. सो अगर आप तभी, इन्होंने बताया कि 90s तक हम सपना नहीं सोच सकते. लास्ट 10 साल में इन्फोसिस ने बहुत लोगों को मिलियनर्स बनाया, बिलियनर्स बनाया. इंडिया में जोहो जैसी कंपनी है जिन्होंने बहुत बनाया है. तो नाउ अनलॉकिंग द वैल्यू एंड यू गेटिंग ईसॉप्स. तो ईसॉप्स अगर आपको मिलते हैं तो आप अच्छी वेल्थ बना सकते हो. म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत लोगों को ईसॉप्स मिले हैं, फंड मैनेजर्स को ईसॉप्स मिले हैं, तो आप पैसा बना सकते हो. बट उसमें क्या होता है, वो गेम फिर एक अलग लेवल, उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी अलग हो जाती है एकदम. यू टेक्निकली आप जॉब कर रहे हो, एक वाइस प्रेसिडेंट हो, बट यू आर अ बिजनेस ओनर इन दैट सेंस, है ना? तो फिर उस केस में आप 9 to 9 दिमाग नहीं, आपका भी 24/7 ही चलेगा. What should a man look for in a woman? Men are very fickle. Women are very powerful. I feel that women are much more stronger than men are. Anybody who has the possibility of giving birth to another human being has to be a superior person. Men are very insecure, basically. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. A man falls in love with a girl, or a boy falls in love with a girl because the way she laughs, the way she sits, the way she gets into the car, the way she does this to the hair. And when the girl confirms that yes, I also love you, these are the 4 things he stops her from. ऐसे नहीं हंसना, ऐसे क्या करती है बालों को, ऐसे क्यों बैठती हो, मतलब कैन यू इमेजिन? और उनको बेवकूफ़ बनाना भी सबसे आसान होता है लड़कों को. हाँ, Okay. या इट्स बिकॉज उनकी ईगो को थोड़ा सा भी स्ट्रोक कर दो. व्हाट आर दे लुकिंग फॉर? Wow, you're very nice. Wow. Oh, that's so wonderful. Those abs, matlab. Sorry? You seem Look to have at- lost weight. That Yeah, really works for my husband. Yeah, exactly. मुझे लगता है कि जिस दिन शादी होती है, खासकर आजकल के दौर में, हमारे पेरेंट्स की शादी इतने दिन इसलिए चली क्योंकि हमारे रोल डिफाइंड थे. मदर का रोल होता था कि वो घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी. पिताजी का रोल होता था कि वो काम करेंगे. एंड राइटफुली सो, टुडे विमेन शुड वर्क. Of course they should work, and they are independent, they should work. So there is a less possibility of not having clash. मैं हमेशा कहता हूँ as a joke कि जिस दिन आपकी शादी हो रही होती है उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया. बिकॉज नाउ यू फील ओ माई गॉड, इस इंसान के साथ अब मैं 40 साल, 30 साल, 45 साल गुजारने वाली हूँ. आई नीड टू बी इंडिपेंडेंट. आपको पहले से ही कहना पड़ेगा कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है. And love does not stay in a long marriage. Love goes at the end of it. Love has a different interpretation. I'm married to Kiran for 40 years. Aisa nahi hai, this has been with the most amazing relationship. It has been amazing as far as the friendship is concerned. And also don't ever disrespect the person in a relationship. Love nahi rehta hai. And I'm not saying it cynically. जी. The kind of love you feel initially, the kind of love you feel the initial stages, that's not possible, no? Right. Because other things take over, responsibilities take over. भाइयों बहनों में उतना प्यार नहीं रहता. हस्बैंड वाइफ में प्यार को हम कंफ्यूज करते हैं. But if you are kind to each other, if you are once in a while sort of make a habit of sort of noticing the person, we stop noticing the other person. Kiran and I will always have a great mutual respect for each other. And also never in a fight, I feel never hit below the belt. क्या होता है when you are in love, you tell your inner secrets, inner fears to the other person. कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, या मुझे जब तुम चिल्लाते हो तो बहुत प्यार में. And if you have a fight and the person says that thing कि तुम ऐसी हो, तो then I think the relationship is a break. How do you take control of your mind?
बिकॉज इसकी कोई हैक्स हैं, मेडिटेट करें, म्यूज़िक सुने, मतलब आपकी लर्निंग में इतने साल में आर्मी में आपने क्या सीखा है? कोई हैक नहीं है इसका, देयर इज़ नो गुरु मंत्र। मतलब एक्चुअली दिस सो मेनी टाइम्स पीपल हैव अप्रोच कि सर मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसका मैं क्या गुरु मंत्र दूँ मैं आपको? ऐसा थोड़ी है कि आप क्या कहते हैं इसको, गायत्री मंत्र 10 बार पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। यू जस्ट डैम हैव टू रियलाइज़ कि भैया ये आपका माइंड है, आप इसको कंट्रोल करो। जब आपका माइंड वंडर ऑफ करता है आप उसको पकड़ के लेके आइए कि श्रीमान मेरे को अगर ये करने के लिए एग्ज़ाम देना है और इतने घंटे बचे हैं जिसमें मैं इतने घंटे पढ़ सकता हूँ, क्या मैं मास्टर प्लान बनाऊँगा कि इतने हर दिन आई हैव टू रीड, इतना हर दिन आई हैव टू डू रिसर्च, इतना हर दिन आई हैव टू मे बी स्लीप, एंड देन यू स्टिक टू इट। Finally, it is hard work and discipline and your time management that is going to give you success anywhere. But ये करने के लिए आपका माइंड कंट्रोल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज मोबाइल में आया व्हाट्सअप या मुझे ध्यान आया कि दिव्या जी को मैसेज करना था, मैंने फोटोग्राफ भेजने थे पॉडकास्ट के बाद में, मैंने वो जब देखा किसी और के मैसेज है, मैंने उस पर देखा, फिर वहाँ से लिंक गया इंस्टाग्राम में मैं जब देखने लगा तो 4 चीज़ें, और फिर मैं भूल गया कि मैं मोबाइल देखा किस लिए था, क्यों देख रहा था, क्या कर बिल्कुल। रहा था। वाई हैज़ दिस हैपन? दिस इज हैपन बिकॉज यू आर वीक इन द माइंड। इफ़ यू कंट्रोल योर माइंड कि भैया मोबाइल का टाइम आएगा बेटा, ये रात को 8 बजे के बाद है, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम हेयर। मुझे ध्यान है कि कोई बात नहीं, 8 बजे के बाद मैं लिख करके रखा कि भैया आजकल तो इतने सारे वॉइस कमांड में आप नोट करके रखिए कि ओके आई हैव टू सेंड फोटोग्राफ्स बट आई डू इट आफ्टर 8 o'clock, आई नॉट डू इट नाउ। सीक्रेट वही है कि आपको जो हासिल करना है दुनिया के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप ही ने करना है, कोई और आके Nobody नहीं, else, हाँ। कोई और आके नहीं करेगा, Nobody else is going to कोई come and ऐप make you कुछ नहीं successful. करेगी। एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही करना है वो। बिल्कुल। इट्स एज सिंपल एज दैट। यू कैन मेक इट एज कॉम्प्लिकेटेड एज यू वांट और नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट अल्टीमेटली द बिल्कुल बिल्कुल। थिंग इज इफ यू हैव टू बी सक्सेसफुल यू ओनली, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल यू कि भैया मुझे ना मैं सक्सेस हूँ और मुझे तुम बहुत पसंद आ गए तो आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, नो वे। आपको यू हैव टू वॉक दैट पाथ, यू हैव टू मेक योरसेल्फ capable of handling that success. तो बेसिकली 3 दिन में योर, मतलब मैं बॉक्सिंग का एग्जांपल देती हूँ, थोड़ी बहुत बॉक्सिंग की है मैंने, तो उसमें 3 मिनट 3 मिनट का, मैं वो 3 साल जैसा लगता हो का एक वो बाउट शॉपिंग का Yes, एक yes. वो होता है, और पूरी बॉडी एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में होती है, और 3 मिनट के बाद मतलब खड़ा नहीं हो जाता है क्योंकि बॉडी में इतना मतलब एनर्जी एड्रेनलिन होता है। 3 दिन तक अपनी बॉडी को ऐसे रखना, इसमें ये फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है। टॉयलेट जाएंगे नहीं जाएंगे, आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना कैसे करते हैं? मैम एक्चुअली देखिए क्या होता है, जब जो वहाँ पर 3 दिन में पोजीशन ली होगी वो डेफिनेटली एक स्नैपर होगा, लेकिन ये बनने के लिए आदमी मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है। कैसे? जब भी एक स्नैपर को तैयार किया जाता है मैम, तो ये लगा लो 40 किलोमीटर की रनिंग होती है मैम, 40 किलोमीटर रनिंग, और बॉडी में कम से कम 25 से 30 kg का वेट होगा मैम। 40 किलोमीटर तक कंटिन्यू दौड़ना है, या पैदल नहीं चलना है मैम, आपको दौड़ना है 40 किलोमीटर तक, और आपके शरीर में 30 kg वेट। और ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर जाने के बाद आपको अगले दिन रेस्ट दिया, आपको 1 घंटे के रेस्ट के बाद दूसरी एक्सरसाइज, तो पहले आपको इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है। एक्चुअली ट्रेनिंग क्या है मैम? ट्रेनिंग दुनिया में यही है कि आपको आपकी ताकत दिखाना। अगर मैं बोलूँ कि दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग हो, सपोज करो कि अगर मुझे 40 किलोमीटर मैंने दौड़ा है 30 kg वेट लेकर, तो मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर या मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे इसलिए दौड़ाया क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है कि लक्की बिस्ट तेरे में ताकत है 40 किलोमीटर दौड़ने की। उन्होंने मुझे शक्ति बताई है। अगर आप एक नॉर्मल सिविल आदमी से पूछो कि यार तू 20 किलोमीटर दौड़ेगा, बोले यार कैसे दौड़ूंगा, क्योंकि उसने दौड़ा नहीं है ना मैम। जिस दिन वो कभी 20 किलोमीटर दौड़ ले, बोले हाँ दौड़ लूंगा। हम जीवन में वही काम कर सकते हैं मैम जो हमने किया हो ट्रेनिंग में। अगर आप मुझे अभी बोलो यार किसी आदमी का ऑपरेशन करना है डॉक्टर, मैं बोलूँगा मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी नहीं किया ना मैम। वो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत है, मैं तो टच भी नहीं होगा मुझसे क्योंकि मेरी चीज़ नहीं है मैम वो। तो लाइफ के अंदर दुनिया में अगर आपने कुछ भी बनना है, अगर आपने एक कमांडो बनना है, आपने एक स्नैपर बनना है, आपने एक बॉम्ब एक्सपर्ट बनना है, तो डेफिनेटली वो ट्रेनिंग होगी मैम उसकी। और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मेंटली कैसे कि आपको इतना परेशान कर दिया जाएगा मैम स्टार्टिंग में ही, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे तो आप छोड़ छाड़ के चले जाओगे मैम। आप इतना इरिटेट हो जाओगे, आपको बोलेंगे कि एक काम आपको मतलब ये लगा लो कि 24 घंटे में आपको सिर्फ 2 घंटे सोने के लिए देंगे हो, आप इरिटेट हो जाओ। लेकिन अगर वो इंस्ट्रक्टर देख लेते हैं कि आप में दम है रुकने का, आपने झेल लिया 10-12 दिन, तो ये लड़का झेल लेगा। Could you give me some techniques
that we can use to expand our mind? There's so many, Divyaji. You can, wow, where to begin? You can do meditation. You can do very simple meditation. I think best way to start would be to start by calming your mind. Okay. Because these days, people have a lot of problem with overthinking, a lot of stress, a lot of anxiety, a lot of deadlines. They're multitasking with almost every aspect in their lives. So the best thing would be to quieten the mind down first. It's like a glass of water. Let's say the glass is the body, the water is the mind, and the thoughts that occur are like the sediments of dust in the glass. So if you keep shaking it, if you keep shaking the glass or the bottle, the sediments will fly around, float around, and the water will not be clear. The moment you put the bottle down on a table, the sediments slowly start to settle. Then that becomes clear. The sediments settle at the bottom, the water becomes clear. So that's how the body and the mind also function. So the mind cannot do it alone. It has to depend on the body. The body is kind of like the vessel. That is why I'm a big proponent of exercise, diet, keeping yourself healthy. I work out almost every day. I do gymming, I do yoga, I do high intensity interval training, and I watch what I eat. So you take care of your body. But when it comes to the mind, I would suggest first you do calming meditation. I'd like to talk about, एक आपने बात किया था sleep. एंड कितना ज़रूरी है स्लीप. आज के दिन एक हसल कल्चर हो गया है जहाँ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सुबह शाम रात. फाउंडर्स बोलते हैं वी आर सर्वाइविंग ऑन 4 hours ऑफ स्लीप. स्लीप इज़ द न्यू डाइट. ओके, एक रिसर्च था, तो एक 15 या 20 लोग ले लिया, आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली, बट जो लोग मेरे क्लिनिक के अंदर आते हैं मैं उसको स्टोरी बताता है कि भाई 15 लोग 20 लोग था, उन्होंने बोला कि भाई आप पहला 5.5 hours का स्लीप ले लो, सेम टू सेम डाइट, सेम टू सेम एक्सरसाइज, आप स्टार्ट करो फैट लॉस के लिए. तो ये लोग सब एक्सरसाइज चालू कर दिया एंड एवरीथिंग. कुछ 579 कैलोरीज का बर्न हो गया. 1-2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला कि भाई अभी तुम 8.5 hours स्लीप करो. तो बोलेगा अरे भाई 8.5 नहीं, साइंस से एक स्टडी है, आप कर दीजिए. ठीक है, मंजूर है. 2 हफ्ते के लिए दे स्टार्टेड डूइंग इट. दे बर्नड 1039 कैलोरीज. What they found is the fat burning is 2x more when you get 3 hours of more sleep. Wow. तो जिन लोग फाउंडर जो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं 4 घंटा का स्लीप ले रहा है, वो फैट डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन एफडी भी बनाता है क्योंकि बिजनेस बनाता है. राकेश झुनझुनवाला has said in a viral podcast video saying, my worst investment has been my health. Right. I will ask people in India, would you rather have 5,000 crores in the bank and then ask your wife and son, would they prefer the husband or the father to be alive or have that 5,000 crores? Any child or any spouse will choose their loved ones over the money. I'm not saying don't make money, but I'm saying when you pitch this thing that less sleep makes you successful, yes, but that could be a short period of your life. You are an entrepreneur. I am an entrepreneur. I slept 6 hours last night because I had to do a session. Tonight, I'm going to probably 6 hours. But when I get back on Sunday, I'm going to go and get my 8 hours of sleep. But on an average, in 365 days a year, Divya ji, I sleep 7 to 8 hours because my exercise variable is tracking me and telling me my resting heart rate. तो sleep, अगर आपको डाइट नहीं करने का, ठीक है भाई, रायन फर्नांडो का डाइट फॉलो मत करो, ठीक है, राइस खा लो, चपाती खा लो, थेल खा लो, लेकिन प्लीज स्लीप लॉन्ग बिकॉज द लॉन्गर यू स्लीप यू रिलीज स्टेम सेल्स. एक नींद जो होता है SWS स्लीप, यू मस्ट हैव सीन दैट ऑन योर वॉच और इन योर एप्पल फोन. SWS साइन वेव स्लीप रिलीजेस स्टेम सेल्स. भाई ये स्टेम सेल्स कौन है? स्टेम सेल्स आपका कॉन्ट्रैक्टर का सेल है. तोड़ फोड़ हो रहा है शरीर के अंदर, तो ये कॉन्ट्रैक्टर सेल आते हैं, सलाम साहब यहाँ का दिव्या का लिवर के अंदर जो जितना भी गंदगी है उसको निकालने का. हाँ ठीक है, दिव्या ने रनिंग किया, हाँ ठीक है, नीज थोड़ा ख़राब हो गया, इसको रिपेयर करने का है. जब आप 4 घंटे का नींद लेगा तो आपको सिर्फ 35-40 मिनट्स का SWS स्लीप मिलेगा. तो जिन लोग को 7 के ऊपर जा रहे हैं वो डबल गुना कॉन्ट्रैक्टर सेल्स मिल रहा है. स्लीप इज़ द न्यू डाइट. एंड एक माइंडसेट होता है, लॉट ऑफ पीपल से कि नहीं आप ना पढ़ाई कर रहे हो या एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हो, UPSC की पढ़ाई करो, 4 साल तक बाकी सब कुछ छोड़ दो, ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. हाउ प्रैक्टिकल डू यू थिंक दैट इज़
कि मैंने बस उसको अपनी प्रायोरिटी बना दिया, मैं वो कर रहा हूँ और मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ. Is that good? Is that more harmful? And that's not practical even. You know, I always say to my kids, please don't become a zombie. We don't need depressed, sad faces in government. हमें खुश लोग चाहिए. Questions, excited, you know. So there has to be this zeal of changing something, you know, creating an impact. So I will say कि yes, the priority has to be studies, but when we say learning and knowledge and studies, it is not just about only the content. Had it been so, then interview part. So UPSC has conducted the exam in 3 phases. जी. So first is prelims. Prelims is objective. Objectivity. So they are checking how vast you can learn. Even if you don't know the direct answers, can you still sense through your intuitive ability what could be the answer by eliminating the, you know, which cannot be the answers. So this is the kind of objectivity which UPSC test is. First step. Second is subjectivity. How good you can write, how well you can express, well you can articulate. Can you concise the whole lot of a issue into 2 pages, including the most important facts, figures, case laws, articles, examples, models? Can you do that? And third is the interview stage. Whatever you have learned, can you express it? Can you analyze the things? So it's like this interview, the whole preparation itself demands a holistic personality. Right. So people who think that they can clear UPSC just by sitting in a room, closing everything, it's very difficult. You have to go out, you have to meet people. But again, the kind of people you are meeting first, that makes a lot of difference. And how long? So if you go out for a tea, have conversations with friends for 1 hour, 2 hours, it's fine. But then you come back and you learn. Dr. Sid, I want to talk about one thing, Joe, I guess, is probably one of the biggest issues facing our generation, in my humble opinion. And I think that is this idea of focus. Right? हम एक attention economy में live करते हैं जहाँ पे सब कोई हमारे attention के पीछे पड़े हुए हैं, from our phones to Netflix. Every technology is being created to ask for more attention. And अगर कुछ भी task करना है, शायद मतलब सबसे ज़्यादा important है उसको focus देना या अपना attention देना. And I find that severely broken. So what is happening with our brain जो हमारे focus को इतना impair कर रहे हैं? फोकस ऐसे सोच सकते हो कि एक कंप्यूटर स्क्रीन है और हर 8-9 सेकेंड्स वो रिफ्रेश होता है. ठीक है, दैट इज़ आवर अटेंशन. बेसिकली हर 8-9 सेकेंड्स आवर माइंड रिफ्रेशेस टू चेक कि इज देयर एनी डेंजर अराउंड अस. दैट इज द वे द ब्रेन इज वायर्ड. This is from the tribal survival instinct की, this hunting की, भैया are we okay, are we not okay? करेक्ट. एंड जितना ज़्यादा हमारा सेंस ऑफ थ्रेट हुआ उतना जल्दी रिफ्रेश होता है. तो अगर समझो आई एम इन अ बैटल जोन, आई विल बी रिफ्रेशिंग एवरी सेकेंड और एवरी 0.5 सेकेंड्स कि यहाँ से कुछ आ रहा है क्या, यहाँ से कुछ आ रहा है क्या. वेयर एज अगर मैं घर में हूँ, मेरी फैमिली है, हम सब खुश है, हंस रहे, आई माइट रिफ्रेश एवरी 30 सेकेंड्स जस्ट टू चेक कि कुछ प्रॉब्लम है क्या. बट नहीं, flow state is when I'm not refreshing only. I'm just in that zone. मुझे कुछ पड़ी नहीं है दुनिया की. I know I'm safe. मुझे यही करना है, मुझे और कुछ करना ही नहीं है. Flow state is a place where you are safe. Where you are safe, Beautiful. but you are also dialed in. You're focused on one thing, and you are not constantly checking if is there something else I should be doing. This concept of Ho'oponopono, and I've heard a lot of your, talks on this. So I wanted to start with that. They say that this is a prayer, and it also says, this philosophy also says कि जो भी आप experience करते हो, at some point वो
अपनी रिफ्लेक्शन है. सो यू नो वेरी ब्रीफली आई वुड लव टू हियर इन योर वर्ड्स कि ये कॉन्सेप्ट क्या है. हो'ओपोनोपोनो एक हवाइन वर्ड है जिसका अर्थ है आप कुछ करेक्ट करो, कुछ चेंज करो, कुछ ट्रांसफॉर्म करो. मैसेज सिंपल है कि जो भी लाइफ में हो रहा है हमारे पूर्व कर्मों से ही हो रहा है, आपके पास्ट से ही हो रहा है. इसीलिए जब हम बिटर हो जाते हैं, जब अच्छा नहीं लगता, कुछ गलत हो जाता है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हम ये सोचें कि ये क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, इसमें मेरी क्या गलती है. यहाँ कभी कभी गिल्ट ट्रिप में चले जाना, हमें ऐसा लगता है मुझ में क्या कमी है, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. तो दोनों नज़रिए, अपने को ब्लेम करना और दूसरों को ब्लेम करना, ये गलत है. अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि मैं ये समझूं कि अगर मेरे अंदर कोई टेंडेंसी या पैटर्न नहीं होता तो नहीं हो पाता. एक कहावत है, उमा क्षमा श्रापो हुई ते भारी, अपने कर्म जाई अपकारी. इसका मतलब कि जब आप सहना सीखते हैं और अपने अंदर झांकने की कोशिश करते हैं कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन से डील करने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें देखिए अपराध बोध या गिल्ट नहीं आता. एक सिंपल चीज़ है कि आप अपने आप की एनर्जी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे. जब फोकस इस पे जाता है कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, अपने आप के पैटर्न्स को कैसे चेंज करूं, तो फिर आप 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. तो हो'ओपोनोपोनो का कॉन्सेप्ट यही है कि आप ब्लेम गेम में मत जाइए, आप अपने अंदर की एनर्जी को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो हो रहा है आपकी एनर्जी से हो रहा है.